ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 1A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ is unique in group। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਆ ਇੰਟੀਜਰਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਸੀ +-1 +-2 ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ A+0 ਬਾਈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਮੈਥਡ। 0 + A ਫॉर ਆਲ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G। ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਨੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਨਵਰਸਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵਰਸ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, E1 ਅਤੇ E2। ਕੋਈ ਦੋ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਯੂਨੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਰਾਈਟ 2 ਨੰਬਰਸ, ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੋ whose sum of squares is 25। ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 25 ਆਊਗਾ। ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 0, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਪਤਾ ਕਿ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ +4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ A ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਆਂਸਰ। ਉਰੇ ਨੰਬਰ 3 4 ਨੇ, ਉਰੇ ਨੰਬਰ -3 ਅਤੇ -4 ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਂਸਰ ਆ -3। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋਟ ਯੂਨੀਕ। ਇੱਕੋ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਂਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ 3 ਅਤੇ 4 ਆ ਰਿਹਾ ਆਂਸਰ, ਇੱਕ -3 ਅਤੇ -4 ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ -3 4 ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ 3 -4 0 5
05 ਵੀ ਆਂਸਰ, मतलब काफ़ी आंसर बनते हैं ये। इस करके आप ये नहीं कह सकते है ये कि आंसर जोड़ा हैगा वो यूनीक आऊगा। हुण यही क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर दिए आप, मॉडिफाई मतलब कि नंबरस बारे तुहानूं कह देवां कि नंबर जिहड़े हैगे ने वो नैचुरल नंबर ने। क्वेश्चन सेम कि दो नंबर दसो किहड़े-किहड़े होणगे जिन्हां दा सम ऑफ स्केयर करिए 25 बनेगा। हुण नंबरस विच कंडीशन गिवन आ कि नंबरस आपां नैचुरल नंबर लैणे। नैचुरल नंबर हुंदे हैगे ने जिहड़े पॉजिटिव इंटीजरस होण। हुण इहदे विच आपां फिर देखीए दूजा क्वेश्चन कर रहे हां तां आंसर एक तां आ बनदा। एक आंसर मैं होर बना रहा, नैगेटिव तो आप लै नहीं सकते है, इक्को चीज़ है जी, फर्क नहीं है अगे पिछे करना फर्क नहीं पै रहा, इक्को चीज़ है। एक आंसर होर बना रहे हैं, एक आंसर होर बना रहे हो। तुम कहोगे मैं तो वही चीज़ लिखी जा रहा दोबारा एक आंसर होर बना रहे हैं। फिर कहोगे कि मैं दोबारा वही चीज़ पाई जा रहा। ये दोबारा नहीं है, मतलब कि जिन्ने भी तुसी आंसर बनाओगे कोई भी दो मैच कर लो, सारे आंसर बना ले, मतलब कि रिपीट करके जिन्ने भी आंसर बन गए कोई दो मैच कर लो, सेम नहीं है, कोई भी दो मैच कर लो। तो मतलब कि बनया आप कोई भी दो लै लीए, कोई भी दो आपने आंसर ले अपने, जे वो इक्वल आ जाण, कोई भी दो चक लो, चाहे आ दो लै लो, ये भी इक्वल ने आंसर, ऑर्डर मैटर नहीं करता ये भी दोनों इक्वल आंसर ने, ये भी दोनों इक्वल आंसर ने, ये भी इक्वल आंसर 3-4 नंबर ने, भी 3-4 नंबर ने, कोई भी दो आंसर चक लीए तो इक्को सेम ही आ रहा आंसर। जे सेम ही आ रहा हैगा फिर यदा कोई फायदा ही नहीं है अपन, जे फायदा ही नहीं है तो आप कहांगे आंसर इक्को ही है। तो दोबारा देख लो अपने को यूनीकनेस किवें शो करनी होंदी हैगी आ, वो देखते हैं। पहला देखो दोबारा कि ये की कहा सी आपां नूं सम ऑफ स्केयर्स लैना हैगा 25 आवे, तो आपने कोई दो नंबरस ले 3-4 नंबर लैने मैंने एक बारी, चलो ये छड़ता, फिर दोबारा नंबर ले 4-3 लैने, गल तो एक ही है, ऑर्डर मैटर अगे पिछे करना फर्क नहीं पैंदा हैगा। फिर कोई होर नंबर ले 3-4 ही आऊगा 25, फिर हो सोचा 3-4 ही आऊगा 25, 3-4 ही आऊगा 25, मैं जिन्ने भी नंबर बनते सारे पाले आप। हुण देखिए तो रिपीट करी जाने आप, रिपीट किवें देखिए आपने कि कोई भी दो नंबर आप लवांगे, दो आंसर आप लवांगे, उन्हां दा आंसर की कर रहा आपस में मैच कर रहा, कोई भी दो लै लो। जे कोई भी दो का आंसर आपस में मैच कर रहा तो आप कहांगे जिहड़े ये सारे आंसर पाए ने ये तो फायदा कोई नहीं है, देखो आंसर इन्ने आंसर लिखने का फायदा कोई नहीं है। इस करके फिर आप इत्थों डिसाइड कर लवांगे आंसर एक किवें डिसाइड किया कि कोई होर आंसर आपने बनाया वो आंसर इहदा मैच कर गया। उरे आंसर इक्को क्यों नहीं है, बिकॉज कोई होर आंसर बनाया मैच नहीं करता, उरे 3-4 है, -3 तो -4 है, आंसर दे विच फर्क है। इस करके फिर ओवरऑल रिजल्ट की बनया, यूनीकनेस शो करनी होगी अपने, मतलब अपने शो करना कि आइडेंटिटी एलीमेंट यूनीक, आइडेंटिटी यूनीक, तो अपने कोई दो, ये मैं इदा कह रहा कोई दो मान ले E1 E2, ये E1 भी आइडेंटिटी है, E2 भी आइडेंटिटी, कोई दो मान लिया, कोई भी दो, चाहे आ दो लै लो, चाहे आ दो लै लो, चाहे आ दो लै लो, कोई भी दो लै लो, कोई भी दो मान के उन्होंने आपस इक्वल कर देना। मतलब की बन गया यदा, फिर मतलब ये बन गया अपने को कि कोई भी दो मनोगे वो सेम ही ने, जे सेम ही ने तो फायदा कोई नहीं है दो मनन का, कोई भी दो लाओगे वो सेम ही आ रहे हैं आपस, तो ये एक्सट्रा मनन का फायदा कोई नहीं है। तो इतों की रिजल्ट कटांगे कि आंसर इक्को है, काफ़ी आंसर नहीं है, आंसर इक्को ही है। तो कोई दो मन्ने अपने दोने इक्वल आ जाना आपस दे विच, तो आप इतों कहांगे दो मन्ने दोने इक्वल आ गए, तो अलग अलग मनन का फायदा कोई नहीं है। जो फायदा कोई नहीं है तो आप कहांगे कि आइडेंटिटी एलीमेंट यूनीक, यूनीकनेस हमेशा इदा ही शो करनी होती है, कोई दो मन के उन्होंने आपस इक्वल शो कर देवो, इक्वल शो करके फिर आप कहांगे यूनीक आ गए। इस तो बाद आप नैक्सट प्रॉपर्टी भी करांगे, उस आप शो करांगे इनवर्स एलीमेंट, वो वाली करांगे, वो भी यही कंसैप्ट लावांगे। चलो हुण आह थ्योरम करते हैं। थ्योरमां तकरीबन सारियां सौखियां ने, सौखियां तां लगणगियां जे नाल काम करोगे।
सो मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहा, स्टेटमेंट देख लो उसी भी, ये हैगा अपने को द आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ ग्रुप इज़ यूनीक, आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ ग्रुप इज़ यूनीक। सो लैट कर लिया पहला आप, लैट इतों स्टार्ट कर रहे हैं, लैट जी बी एनी ग्रुप, जी कोई ग्रुप, लैट कर लिया ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई एलीमेंट लड़े जी विचों, तो इफ पॉसीबल मान लो जे पॉसीबल हैगा, इफ पॉसीबल लेट E1 E2 be two identity elements, ये दो आपां ने आइडेंटिटी एलीमेंट्स मान ले, की करना आपां E1 ते E2 आपां इक्वल शो करने, बस ये काम करना आपां। चलो देखो हुण इत्थे प्रॉपर्टीज़ रखनी है, चार प्रॉपर्टीज़ कीती आपां ग्रुप वास्ते, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलीमेंट एग्जिस्ट करता होंदा ते इनवर्स एलीमेंट एग्जिस्ट करता होंदा, ये चार प्रॉपर्टीज़ ने अपने को उही यूज़ होणगियां फिलहाल। हुण ये विच अपने को E1 आइडेंटिटी एलीमेंट आ, आइडेंटिटी एलीमेंट की प्रॉपर्टी की होंदी है, आइडेंटिटी एलीमेंट उन्होंने कहने हैगे आ सिंस E1 इज़ आइडेंटिटी एलीमेंट, आइडेंटिटी एलीमेंट आप उसनूं कहने हुंदे आ जिन्हों जे आप ए नाल ऑपरेट करिए, राइट तो कर लो ए स्टार, इन्हूं ऑपरेट करांगे ए स्टार E1 ऑपरेट किया, ये ए आऊगा आंसर इक्वल्स टू E1 स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये आइडेंटिटी एलीमेंट की प्रॉपर्टी होती है। सो देखो ध्यान आओ, देखना ध्यान वाले, हुण ये ग्रुप आ सिंस जी इज़ ग्रुप, जे जी ग्रुप आ तो आइडेंटिटी एलीमेंट उहदे विच एग्जिस्ट करनगे, ये आपां ने प्रॉपर्टी विच कीता होया, ये ग्रुप की डेफिनेशन होंदी है कि आइडेंटिटी एलीमेंट एग्जिस्ट करता होंदा, ये दोनों पक्का एग्जिस्ट करना। हुण इहदा मीनिंग की है, किसी फॉर ऑल हरेक जी के एलीमेंट वास्ते जे E1 ऑपरेट करांगे राइट तो करांगे या लैफ्ट तो करांगे, सेम आऊगा आंसर ए आऊगा। हुण गौर नाल देखिए E2 जिहड़ा हैगा वो जी च नहीं हैगा, जे E2 जी दे विच आ ते E1 की है आइडेंटिटी एलीमेंट, तो E2 स्टार E1 ये की बनूगा, ये आइडेंटिटी एलीमेंट आ, किसी भी एलीमेंट नाल जे आपां ऑपरेट करांगे किता होया आपां ने, तो ये पक्का सेम बनाऊगा, ये आइडेंटिटी एलीमेंट आ, किसी भी एलीमेंट आप ऑपरेट करांगे तो यह पक्का सेम बनाऊगा, इज इक्वल्स टू E1 स्टार E2, बिकॉज E1 की हैगा आइडेंटिटी एलीमेंट, मैं लिख भी देना इतने बिकॉज E1 इज़ आइडेंटिटी, सीधा बोलो आइडेंटिटी है। हुण दूजा देखो इस तो बाद आलसो, ये अपन पता हैगा E1 E2 दोनों जी चाह रहे हैं, आलसो E1 भी जी चाह रहे एंड E2 की बनया है आप E2 भी तो आइडेंटिटी एलीमेंट एंड E2 इज़ आइडेंटिटी, जे E2 आइडेंटिटी एलीमेंट हैगा, आइडेंटिटी एलीमेंट नूं किसी नाल भी ऑपरेट करांगे जी दे एलीमेंट नाल तो सेम आऊगा, मतलब E1 स्टार E2, हुण ये आइडेंटिटी एलीमेंट को किसी नाल भी ऑपरेट करांगे तो आंसर की आऊगा, सेम आऊगा, इज इक्वल्स टू E2 स्टार E1, ये नंबरिंग 2 पा लो, ये नंबरिंग 1 पा लो। हुण गौर नाल देखो आह अते आह E1 स्टार E2 स्टार E1, ये E2 बराबर E2 स्टार E1 E1 बराबर, दोनों E2 स्टार E1 E2 स्टार E1 ने, ये दोनों इक्वल ने तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 E1 इक्वल्स टू E2, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट
इज़ यूनीक, आइडेंटिटी एलीमेंट इज़ यूनीक। ये अपने पहली प्रॉपर्टी सी जी। इस तो बाद शो करना अपने पहले रब कर लीजिए। आपने हुण इनवर्स एलीमेंट बारे कहा सीगा कि जिहड़ा इनवर्स एलीमेंट हुंदा वो पूरे ग्रुप वास्ते सेम नहीं हुंदा। हरेक का इनवर्स एलीमेंट जिहड़ा हुंदा हैगा वो अलग अलग हुंदा। पर हुण उरे की प्रूव करना, जिवें एग्जाम्पल लै रहे हैं, जिवें Z की गल कीती सी अपनी, पहला देख लो समझाना हैगा, फिर आपां स्टेटमेंट पढ़ांगे नैक्सट दी। ये गल कही सी कि इनवर्स एलीमेंट की होगा 1 का 1 च आपां की ऐड करिए कि 0 आवे। 1 का इनवर्स की हो गया -1, 2 का इनवर्स की होगा -2, 1 का इनवर्स कुछ हो रहा है, 2 का इनवर्स कुछ हो रहा है। इनवर्स हरेक का अपना अपना होगा लगता। पर एक गल कन्फर्म आ, जो एक ये प्रूव करनी है कि 1 का इनवर्स जे निकल गया -1, ये यूनीक आऊगा। मतलब हरेक एलीमेंट का होगा तो अलग अलग इनवर्स, पर हरेक एलीमेंट का इनवर्स यूनीक होगा। दोबारा समझ लो किवें, जिवें ਇਹਦਾ अलग 1 का इनवर्स -1 आ रहा, 2 का इनवर्स -2 आ रहा, हरेक एलीमेंट का इनवर्स तो अलग अलग आ रहा। पर जे 1 का इनवर्स -1 आ रहा, अलग तो आ रहा, पर 1 का इनवर्स इक्को होगा, -1 होगा, कोई 2 इनवर्स नहीं आ सकते। मतलब कि ਇਹਦਾ इनवर्स अलग अलग तो होणगे पर यूनीक होणगे। ये गल समझनी है, ध्यान। जो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हैगा वो तुसीं देख लो। इनवर्स ऑफ ईच एलीमेंट ऑफ ग्रुप इज़ यूनीक। मतलब इनवर्स ऑफ ईच एलीमेंट, हरेक एलीमेंट का इनवर्स यूनीक होगा। मतलब ਇਹਦਾ भी आंसर यूनीक आऊगा, ਇਹਦਾ भी आंसर यूनीक आऊगा। ये नहीं कहा कि सारे वास्ते इक्को होगा। इतने एवरी वर्ड पाया उन्होंने, एवरी ਜਾਂ ईच एलीमेंट पाया, ईच एलीमेंट का इनवर्स यूनीक होगा। मतलब 1 का इनवर्स जे आ रहा तो इक्को आऊगा, वो 2 आंसर नहीं आ सकते। 2 का इनवर्स भी इक्को आऊगा, 3 का इनवर्स भी इक्को आऊगा, 4 का इनवर्स भी इक्को होगा। मतलब उरे 1 का इनवर्स कला -1 ही आऊगा, होर इनवर्स नहीं आ सकता इस तो इलावा जे ग्रुप होगा। ये आप शो करना हैगा। जो करते हैं उवें हुण इनवर्स आप यूनीक शो करना, तो 2 इनवर्स मन के वो दोनों आप आपस दे विच इक्वल कर देवांगे। फिर उत्तों कहांगे अपने इनवर्स एलीमेंट जिहड़ा हैगा वो यूनीक आ गया। जो देखो ध्यान नाल वो करन लगे आप, इत्थों मैं इत्थों स्टार्ट कर रहा। उवें लैट गल, लैट जी बी आ ग्रुप, जी आप ग्रुप मान लिया। लैट कर लिया ए बिलोंग्स टू जी, ए जी विचों मान लिया। तो इफ पॉसीबल let B1 and B2 be two inverses of A। हुण ये शो करना कोई भी एलीमेंट लिया आप ए, ਉਹਦਾ इक्को इनवर्स आऊगा। मान लो आप फिर 2 इनवर्स मान लिया। अपना काम की है 2 इनवर्सिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ, इक्वल करना। काम सिंपल ही आ। इनवर्स की गल हो रही है तो इनवर्स की प्रॉपर्टी आवांगे। इनवर्स की होंदा हैगा, सीधी मैं पा रहा हैगा। देयरफॉर हुण B1 की मन्ने आपां ए दा इनवर्स वो हुंदा चाहे आपां राइट तो ऑपरेट कर लीए, चाहे आपां लैफ्ट तो ऑपरेट कर लीए। राइट ते पाया जी, लैफ्ट ते पाया, आंसर की आऊगा हमेशा आइडेंटिटी। हुण देखो ध्यान नाल, सारा कुछ ध्यान नाल लिखना हुंदा हैगा। हुण ई बारे किते भी नहीं कुछ मन्निया आपां, ई है की है लिखता दिता आपां ने। जिहड़ी चीज़ यूज़ होगी वो दसना होंदा कित्थों आया या की मन्नी आपां ने। फिर उरे ई की है आइडेंटिटी एलीमेंट लिखना आपां ने। वेयर ई इज़ आइडेंटिटी एलीमेंट, ई जिहड़ा हैगा वो आइडेंटिटी एलीमेंट। चलो इन्हूं ए रख लाने आपां, फिर दूजी लगा लैने आपां। हुण B2 भी तो इनवर्स आ, इनू भी आपां चाहे राइट तो ऑपरेट कर लीए, चाहे लैफ्ट तो ऑपरेट कर लिए, आंसर बराबर आऊगा। हुण उरे थोड़ा जिहा आपां ध्यान रखना, इस तो बाद नंबर 1 2 पा लेने। हुण ये बराबर किवें करना ना,
पिछली थ्योरम तो सौखा आ गया सी, देखो आ चीज़ बराबर नहीं हैगी, ये बराबर नहीं हैगी, नाले फिर किवें करना देखो। हुण B1 इक्वल टू B2 शो करना, इनवर्स एलीमेंट सेम आ रहे हैं। हुण B1 इक्वल टू B2 शो करना आपां ने, तो ये वास्ते लैफ्ट हैंड साइड लवांगे, मतलब B1 तो स्टार्ट कर रहे हैं आप। हुण B1 तो अगे किवें जाना देखियो ध्यान, कंसीडर किया आपां ने B1 लिया जी। B1 नूं आपां लिख सकते हैं B1 स्टार E, बिकॉज E आइडेंटिटी एलीमेंट आ, तो किसी नाल भी आप ऑपरेट करांगे सेम आऊगा आंसर। E आइडेंटिटी एलीमेंट मन्निया है आपने। आइडेंटिटी एलीमेंट की प्रॉपर्टी की होंगी है, किसी भी एलीमेंट ना राइट ऑपरेट लैफ्ट ऑपरेट जो मर्जी ऑपरेट कर लो, आंसर की आऊगा हमेशा आइडेंटिटी एलीमेंट आऊगा। हुण देखना ध्यान नाल, इत्थे आपां कोशिश करनी हैगी आ B2 लैके आना, और B2 ये विच आऊगा तो ही सॉल्व करके B2 बनेगा। B2 लैके आना आप सारा ओवर, यदा आंसर आपने B2 बनाना है, आंसर ध्यान से रखना। हुण B2 वास्ते अपने को जे B2 ये विच आऊगा तो ही B2 बनेगा। हुण B2 आने वास्ते किहदी वैल्यू भर सकते हैं आप, E की वैल्यू देखो, E की वैल्यू आ भी हैगी आ भी हैगी ना। आ भरन का फायदा कि B2 नहीं हैगा, B1 तो हैगी हैगा, B2 लैके आना आप, आ भरन का फायदा कोई नहीं हैगा। हाँ आ ठीक ने वैल्यूज, आ भी भर सकते हैं आप, भी भर सकते हैं, दोनों वैल्यू के विचों B2 ये B2 आ रहा, ये B2 आ रहा। हुण भरनी किहड़ी वैल्यू आ, मैं भर के दिखा रहा, देख लो पहला ये वैल्यू भरीए, पहला आप भर के देखते हैं। B1 स्टार इत्थे भरता अपने B2 स्टार A, समझो ध्यान। हुण ग्रुप दे विच ग्रुप तो हैगी आ, 4 प्रॉपर्टियां यूज़ करनियां ने, क्लोजर, एसोसीएटिव, आइडेंटिटी तो इनवर्स वाली। हुण एसोसीएटिव प्रॉपर्टी की होंदी है, जिस तरह मर्जी ऑपरेट कर लो, चाहे पहला इनू ऑपरेट करके ना ऑपरेट कर लो, चाहे पहला A 2 ऑपरेट करके ना ऑपरेट कर लो, A स्टार B स्टार C या A स्टार B स्टार C। तो ये फिर अपने को इनू इदां भी कर सकते हैं। हुण ये नंबर जिहड़े हैगे ने आम नंबर नहीं है, तुसीं ऐ नहीं कि अगे पिछे कर दोगे, मतलब कि B2 पिछे पा लिया, A अगे पा लिया, ये नंबर इदां नहीं है, ग्रुप आ। जे ग्रुप दे विच आपां गिवन हुंदा कि अबिलियन ग्रुप आ, फिर आपां अगे पिछे कर सकते, बिकॉज अबिलियन दे विच A स्टार B ते B स्टार A बराबर हुंदे ने। इत्थे पहुँच गए, ये कोई वैल्यू पता कुछ लगता कि आप A भी खत्म करना ना किस तरीके नाल, उरे कल्ला B2 लैके आना, कि कोई फायदा होगा इहदा फेक क्वेश्चन अड़ गया इत्थे, तो फिर A का फायदा कोई नहीं है यूज़ करने का। जे आप आ यूज़ कर ली फिर कुछ फायदा हो जाएगा, फायदा क्यों हो जाएगा ये मैं ठीक कर रहा, उरे A लै लीए, उरे आप B2 लै लीए, फिर आपने करता समझ आ जाएगा। ये हैगी आ एसोसीएटिव, AP पाना मैं एसोसीएटिव प्रॉपर्टी। फिर हुण ये B1 स्टार A का फायदा हो गया हुण, क्योंकि B1 स्टार A नंबरिंग 1 देखो, ये E बराबर, ये E आ गया, E स्टार B2, ये यूजिंग 1। हुण E तो आइडेंटिटी एलीमेंट होंदा, आइडेंटिटी एलीमेंट को किसी मर्जी नाल ऑपरेट करिए आपां, वो आंसर सेम ही आऊगा। ये B2 आ गया, देयरफॉर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर B1 इक्वल्स टू B2, देयरफॉर इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन G इज़ यूनीक, ये यूनीक आ गया। दोबारा गल ध्यान रखनी है, जो आइडेंटिटी एलीमेंट होंदा पूरे सैट वास्ते सारे वास्ते सेम होंदा तो यूनीक होगा, यूनीक प्रूव किया आपने। इनवर्स एलीमेंट हरेक का अलग अलग होगा, पर हरेक का एक ही आऊगा आंसर, दो आंसर नहीं आ सकते इनवर्स से। ये प्रॉपर्टीज़ आप देखनिया ने, अगे थोड़ी होर प्रॉपर्टी करनी हैगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां, सारी इंपॉर्टेंट ने, प्रूफ तो याद रखने ने, स्टेटमेंट भी याद करनी है इन्होंने। तीजी प्रॉपर्टी कर दें, तीसरी प्रॉपर्टी हैगी अपने को,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਨੇ। ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਫॉर ए बी सी बिलोंग्स टू G we have A star B equals to A star C, this implies B equals to C, ये left cancellation law। B star A equal to C star A, this implies B equals to C, ये right cancellation law हैगा। पहला पार्ट कर रहे हैं, एक पार्ट करांगे दूजा आपे समझा दूगा। ये गल इदा बनी हैगी है, जे G ग्रुप आ, सिंस G इज ग्रुप एंड A B C बिलोंग्स टू G, आल्सो A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B इक्वल टू A स्टार C। ये लैफ्ट कैंसलेशन ला हो सकता, कटिंग नहीं करनी होंगी, मतलब जो कटिंग करांगे आप दिमाग तो की बचेगा पिछे B इक्वल्स टू C, मतलब ये लैफ्ट कैंसलेशन कर सकते हैं, लैफ्ट तो कैंसलेशन कर सकते हैं। दूजा पार्ट हैगा B स्टार A C स्टार A राइट तो कैंसल कर सकते हैं, B इक्वल्स टू C करना। समझने की गल करनी है, ध्यान नाल कैंसल शो नहीं करना होता अपने, ये क्यों नहीं करना वो लग जाओ पता जी, सीधे ही कहना कि ये इक्वल आ गया। हुण ये आया किवें आ, हुण इदां नहीं है कि आपां नूं कैंसल किया, ये चीज़ जिहड़ी हैगी आ कैंसल दे नाल मैच कर रही हैगी आ, मतलब जे आपां कैंसल करांगे तो आ चीज़ बनेगी। ये लैफ्ट कैंसलेशन नाल मैच कर रही है, सर जिहनूं आपां लैफ्ट कैंसलेशन लाओ कहा, हूँ कैंसल नहीं करना होंदा, आपां प्रूव करांगे आपां। तो देखो आपने दिता है कि A स्टार B इक्वल A स्टार C, ये नंबरिंग 1 ले लेने आप। सिंस A बिलोंग्स टू G दिता है आप, दैन हूँ ये सिंबल आप यूज़ किया सीगा, देखो A इनवर्स बिलोंग्स टू G, जे कोई G ग्रुप आ फोर्थ प्रॉपर्टी है, जे कोई एलीमेंट ग्रुप विच हैगा उहदा इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करूगा, बिकॉज G की हैगा ग्रुप, ये पा लेना बिकॉज G इज़ ग्रुप। ये पिछले लैक्चर में आया सी, ए दे उपर -1 का पाने का की मतलब है कि ये ए का इनवर्स आ, ए का इनवर्स की है, दैट इज़ का मतलब की है कि आप चाहे राइट तो ऑपरेट कर लीए तो भी ई बनेगा, चाहे आप लैफ्ट तो ऑपरेट कर लीए तो भी ई बनेगा। वेयर E is identity in G, E is identity in G। इस तो बाद एक टॉपिक होंदा हैगा अपने को, इस कंटिन्यू करते हैं आप, वो टॉपिक हैगा वो देखते हैं पहला, फिर आप कंटिन्यू करते हैं, ये फिर मैं रब कर देना। जिमें नंबरां विच गल करिए आपां, नंबरां दे विच मान लो A इक्वल्स टू B है, ये नोट पा लियो साइड पे, A इक्वल्स टू B है, ये सारे बेसिक गल्लां ने, मतलब कि ये सारे काम पहला आ चुके हैगा +1 +2 छोटी क्लासां दे विच। जे याद आ बहुत चंगी गल आ, नहीं याद तो इन्हूं ध्यान रख लेना चीज़ां नूं। A इक्वल्स टू B आ, आपां नंबरां विच करदे आ, जे आपां मैं करा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड आपां 2 नाल मल्टीप्लाई करता, कोई बच्चा इदां पा रहा 2 नाल मल्टीप्लाई करता, मतलब 2A इक्वल्स टू 2B, ये फर्स्ट तरीका हो गया। कोई बच्चा इदां पा रहा, मान लो मैं किसी बच्चे A इक्वल टू B आ, किसी बच्चे को क्या कि 2 नाल मल्टीप्लाई करो, कोई बच्चा इदां पा रहा है, कोई बच्चा इदां पा रहा, A इंटू 2 B इंटू 2, फर्क कोई नहीं है, दोनों गल्लां सेम ने। ये भी की बनूगा, ये भी 2A ही बनेगा, जिस तरह मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि चाहे अगों मल्टीप्लाई कर लो दोनों, चाहे पिछों मल्टीप्लाई कर लो, फर्क तो कोई नहीं पैंदा है। पर जे +2 दे विच मैट्रिक्स चैप्टर सीगा, उहदे च फर्क पैंदा सीगा, जिवें
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ AX ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AX ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਕੋਮੋਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। A ਇਨਵਰਸ A I ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ I ਬਣ ਜਾਊਗਾ, A ਇਨਵਰਸ A I ਬਣ ਜਾਊਗਾ, I ਇੰਟੂ X ਕੀਤਾ ਇਹ X ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ X ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ A ਇਨਵਰਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਂਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਂਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਦੋਨਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉਹ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ +2 ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ A ਇਨਵਰਸ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ A ਇਨਵਰਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਬਾਈ 2, ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਿਹਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਟਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟ ਬਾਏ A ਇਨਵਰਸ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਆਫ 1। A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ A ਇਨਵਰਸ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ A ਇਨਵਰਸ, ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ A ਇਨਵਰਸ ਸਟਾਰ A ਸਟਾਰ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A ਇਨਵਰਸ ਸਟਾਰ A ਸਟਾਰ C। ਹੁਣ A ਇਨਵਰਸ ਇੰਟੂ A, ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਪਤਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ E ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, E ਸਟਾਰ
B ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਸਟਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ E ਸਟਾਰ B ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਆਊਗਾ, B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ C। ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੇ A ਸਟਾਰ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A ਸਟਾਰ C ਹੋਊਗਾ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, C ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਸ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ A ਇਨਵਰਸ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ E ਬਣ ਗਿਆ, E ਸਟਾਰ B ਉਹ B ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਬਚੂਗੀ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਂਸਰ, ਕਾਫੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ A ਸਟਾਰ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਸਟਾਰ C ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ B ਸਟਾਰ C ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰਾਈਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਖ ਲਓ। स्टेटमेंट पढ़ लो। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G, A इनवर्स द इनवर्स इक्वल्स टू A। मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ A इनवर्स ਦਾ इनवर्स करांगे, ये सेम आऊगा, ये शो करना। तो देखो ध्यान ਨਾਲ A ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ प्रूव करना अपने। A ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ G ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਲਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ A ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ E ਬਣੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਫॉर ਵੇਅਰ E ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G, ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ E ਹੈਗਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G ਆ, E ਇਜ਼ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਇਹ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਾ, E ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ, ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਂਸਰ E ਬਣੇ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦਾ A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, A ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਂਸਰ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ E ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੋਸਟ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਵੀ। ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ E ਬਣਦਾ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ E ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ E ਬਣੇ, ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ A ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ E ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸੇਮ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਵਰਸਲ ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
ए स्टार बी दा इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। मतलब ਆਪਾਂ शो करना हैगा ए स्टार बी दा इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये ना उल्टा हो गया, देखो बी पिछे सी अगे आ गया, इनवर्स कला कला किया, ये सारे का इनवर्स जो इनवर्स आप कला कला करेंगे बी उपर इनवर्स किया, ए उपर इनवर्स किया, उल्टा हो जाएगा, बी अगे आ जाऊगा, ए पिछे चला जाएगा, उल्टा रिवर्स हो गया। रिवर्स करके आप इनू कहने है रिवर्सल ला, ये रिवर्सल ला। हुण ये किवें करना है, देखो ये समझना ध्यान ना, करना की अपने शो करना है कि ए स्टार बी दा इनवर्स, ए स्टार बी दा इनवर्स वो की आऊगा अपने कोल बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ये चीज़ शो करनी है। समझो ध्यान कि ए स्टार बी दा इनवर्स आप ये लैके आना, मतलब ए स्टार बी दा आप इनवर्स कटांगे, हुण इहदे बराबर शो करांगे, जां इनू आपां इस चीज़ नूं आपां ए स्टार बी दा इनवर्स शो करांगे। ये समझियो किवें हैगा, आपां बी इज़ इनवर्स ऑफ ए जां बी इक्वल टू ए इनवर्स, ये कितना प्रूव करांगे कि बी ए दा इनवर्स है। इनवर्स की प्रॉपर्टी हुंदी है बी जे ए दा इनवर्स किवें प्रूव करांगे, जे आपां ए स्टार बी कड्ढीए ये भी ई बन जे, तो बी स्टार ए कड्ढीए ये भी ई बन जे। इत्थों देख के आप कह सकते हैं कि बी की होगा पक्का ए दा इनवर्स होगा। हुण ये की शो करना, मैं थोड़ा जिहा ये नंबर लंबे ने थोड़े जे कंपैरेटिव, तो थोड़ा औखा लग रहा होगा, मैं उरे की शो करना इत्थों कर रहे। वी आर टू प्रूव, आपा ने प्रूव करना है, वी आर टू प्रूव दैट, वी आर टू प्रूव दैट बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए स्टार बी। आ लाइन देख लो, ठीक है। दिस इक्वल्स टू ए स्टार बी का इनवर्स शो करना, अपन ये चीज़ शो करनी है, आप इनू आप इदा लिख लो, हम ज़्यादा समझा देगा। हुण बी नू आप इहदा इनवर्स किवें शो करांगे, जे ए स्टार बी तो बी स्टार ए दोने ई बनणगे, दैट इज़ आपां की प्रूव करना, दैट इज़ आपां प्रूव करना हैगा ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, मतलब ए स्टार बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, चाहे राइट तो ऑपरेट कर लो इनू, ये भी ई बनेगा, चाहे बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स नू आपां लैफ्ट तो ऑपरेट कर लीए वो भी ई बने। गल कोई औखी नहीं हैगी, बस थोड़ा ये तो औखा लगता होगा कि ये नंबर तो लंबे लंबे ने, ये छोटे छोटे नंबर ने, इस करके मतलब अपने इनू इनवर्स शो करना लगी, इनू आप इन्ना राइट तो ऑपरेट करिए, पोस्ट ऑपरेट करिए जां प्री ऑपरेट करिए, आंसर की आए, आंसर बराबर ई दे बराबर आए तो इनवर्स, मतलब आ चीज़ शो करनी, हूँ काम सौखा है। इस तो बाद इनू आप ई बराबर शो करना, वेयर ई की हैगा आइडेंटिटी इन जी, वेयर ई इज़ आइडेंटिटी, ई आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो हुण ये गल ध्यान च आपां कि हुण सिंपल ही गल आ, क्वेश्चन सौखा ही। इस तो बाद इनू सॉल्व करांगे, इनू ई दे बराबर लैके आवांगे, फिर इनू सॉल्व करांगे, इनू ई दे बराबर लैके आवांगे, फिर इत्थों इनवर्स बन जूगा। चलो सॉल्व करते हैं आपां। पहला आपां कंसीडर किया ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। हुण देखो ध्यान कि ये सही लिखा जी, इन्हें इदा लिख सकते हैं आप ए स्टार, आ दो इकट्ठे कर ले, देख लो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होंदी हैगी कि कोई भी दो एलिमेंट इकट्ठे कर सकते हैं।
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਮੋਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗਾ ਅਬਿਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, A ਅੱਗੇ ਆ, ਫਿਰ B ਆ, ਫਿਰ B ਇਨਵਰਸ ਆ, ਫਿਰ A। ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਬਗਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਈ AP ਪਾਵਰ ਨਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, E ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ A ਸਟਾਰ E, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ A ਸਟਾਰ E ਕੀ ਹੋਊਗਾ, A ਹੋਊਗਾ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਮਾਜਨ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ A ਇੰਟੂ A ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਫਿਰ E ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੌਖਾ ਸਾਰਾ, ਬਸ ਆਹ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਲਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ B ਇਨਵਰਸ ਸਟਾਰ A ਇਨਵਰਸ ਸਟਾਰ A ਸਟਾਰ B ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। B ਇਨਵਰਸ ਸਟਾਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਵੇਂ A ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, A ਇਨਵਰਸ A ਆ, ਇਹ E ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ B ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ E ਬਣ ਗਿਆ। Therefore from 1 and 2 A star B ਸਟਾਰ B ਇਨਵਰਸ ਸਟਾਰ A, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ E ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ E ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ E ਬਣ ਗਏ। Therefore ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, A ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ E ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਮਤਲਬ B ਇਨਵਰਸ ਸਟਾਰ A ਇਨਵਰਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, A ਸਟਾਰ B ਦਾ ਇਨਵਰਸ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।